قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معراج ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عظیم الشان معجزہ اور بڑا نرالا معجزہ ہے، حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، پھر ساتوں آسمانوں کے بعد جنت کی سیر کی، جہنم کے مشاہدات، اور سب سے اہم یہ کہ رب کائنات کا جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا، اور جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے رات کو ہی واپس تشریف لے آئے، اور حالت یہ تھی کہ بستر مبارک ابھی تک گرم تھا، کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی، اور وضو کے برتن سے وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں اللہ پاک کا دیدار کر کے واپس تشریف لائے۔ سفر معراج کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے، اور ان تمام پہلو میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ البتہ آج ہم سفر معراج کا ایک جو اہم پہلو ہے، لامکاں کے راز، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر لامکاں میں اپنا دیدار کروایا، اور لامکاں پر جو باتیں ہوئی، جو راز و نیاز کا کلام ہوا، وہ کلام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا راز و نیاز کی باتیں کی، ملاقات، وہ کیسی ملاقات تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے بیان میں سنیں گے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یعنی جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب خاص میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تب اللہ پاک نے اپنے خاص الخاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، جو وحی فرمائی وہ کیا وحی تھی؟ سب سے پہلے تو ہم کوشش کر کے اس لمحے کا تصور کریں۔ اس لمحے کے تصور کو ہم مکمل طور پر نگاہوں میں نہیں لا سکتے کہ وہ کیا لمحہ تھا کہ جب محبوب کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر ہم اپنی طاقت کے مطابق نگاہ عشق سے اس منظر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، عرش کے حجابات سے آگے بڑھتے ہوئے خاص قرب کی منزلوں پر پہنچتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سدرہ سے گزر کر مجھے نور میں ڈال دیا گیا، اور میں 70,000 حجابات سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر آواز آئی، قف یا محمد انا ربک یصلی۔ محبوب فرماتے جب میں سدرہ سے آگے بڑھا، حالت یہ تھی کہ 70,000 حجابات میرے ساتھ تھے، اور ایک مقام پر پہنچ کر آواز آتی ہے، قف یا محمد انا ربک یصلی، اے مصطفیٰ ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے دل میں ہی سوچا، ربی یصلی، کہ کیا میرا رب بھی صلاۃ فرماتا ہے؟ فرمایا گیا، اے محبوب وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر صلاۃ فرماتے ہیں، یعنی درود بھیجتے ہیں۔ یعنی جواب دیا گیا صرف اللہ پاک ہی صلاۃ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد
आवाज आई, अल्लाह पाक ने फरमाया उदनु या अहमद, उदनु या मोहम्मद, अहमद करीब आइए, ए मोहम्मद और करीब आ जाइए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं 70,000 हिजाबात के साथ सिदरा से आगे बढ़ा, आवाज आती है क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली, ए मोहम्मद ठहर जाइए, आपका रब आप पर सलात फरमाता है। कहते मैंने दिल में सोचा कि क्या रब भी सलात फरमाता है, तो आवाज आई अल्लाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलात फरमाते हैं। मजीद कहते हैं फिर मुझे आवाज आई, अल्लाह पाक ने फरमाया उदनु या अहमद, उदनु या मोहम्मद लियदनुल हबीबु, ए अहमद, ए मोहम्मद करीब हो जाइए, ए मोहम्मद और करीब हो जाइए। महबूब फरमाते हैं मैं करीब होता गया, अल्लाह पाक की बारगाह से ये सदा आती रही, करीब हो जाइए। मैं करीब होता गया और इतना करीब हुआ, फकाना काबा कौसैनी औ अदना मिनहू, कि मुझ में और रब की ज़ात में इतना फासला रह गया जितना दो कमानों के दरमियान में फासला रहता है। इतना मैं रब के करीब हो गया। और इस आयत के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, दो कमानें जब आपस में मिलती हैं, जो तीर कमान होता है उसकी कमानों को जब आपस में मिलाया जाए, आप फरमाते हैं उसका एक दायरा बन जाता है। गोया के महबूब फरमा रहे हैं कि जब रब की बारगाह से ये निदा आई कि उदनु या मोहम्मद, उदनु या अहमद, मैं रब की ज़ात के इतना करीब हुआ कि रब के नूर ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यानी मुस्तफ़ा नूर के जलवों में गुम होकर रब की बारगाह में कुर्ब की मंजिलें पाते रहे, करीब जाते रहे, करीब जाते रहे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मंजर को नकल करके लिखते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह से गोया के यूं सदा आती है, बढ़ ए मोहम्मद, करी हो अहमद, करीब आसर वरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मज़े थे। हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पर एक ईमान अफरोज नुक्ता बयान करते हैं। कहते हैं जब अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाना था, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया 30 दिन तक कोहे तूर पर आकर मेरी इबादत करो। 30 दिन तक कोहे तूर पर आकर इबादत की। 30 दिन के बाद मजीद 10 दिन और दिए गए, फरमाया 10 दिन और इबादत करो। 40 दिन तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह पाक की इबादत करते रहे। तो अल्लाह ताला ने 40 दिन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद से कलाम फरमाने का शर्फ बख्शा। फिर इन 30 दिनों में 10 दिनों का इजाफा फरमाया। 40 दिन के बाद 40 दिन के इंतजार के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता हुआ। मगर महबूब की शान के कुर्बान जाइए, जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ बख्शना मंजूर हुआ तो अल्लाह पाक ने 30 दिन और 40 दिन तक का इंतजार न करवाया। 30 दिन 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, आधा दिन भी इंतजार फरमाने की जहमत न दी। आनन फानन कुर्बे खास में बुलाया, हम कलामी की, और सिर्फ हम कलामी ही नहीं की बल्कि अपने महबूब को अपना दीदार भी अता फरमाया। यानी यहाँ भी महबूब की शान जाहिर होती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाना है, फरमाया 30 दिन तक आकर कोहे तूर पर मेरी इबादत करो। 30 दिन जब पूरे हुए फरमाया 10 दिन और इबादत करो। 40 दिन इबादत करने के बाद अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। और जब मुस्तफ़ा की बारी आती है, मुस्तफ़ा की शान को अल्लाह यूं जाहिर फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से तो 40 दिन तक इबादत करवाई, 40 दिन तक इंतजार करवाया, फिर भी सिर्फ कलाम करने का शर्फ अता किया। और जब मुस्तफ़ा की बारी आती है, अल्लाह पाक ने 30 दिन का भी इंतजार न करवाया, 40 का भी इंतजार न करवाया, बल्कि आधे दिन का भी इंतजार न करवाया। आनन फानन रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह पाक ने कलाम भी फरमाया, मुस्तफ़ा को अपना जलवा भी दिखाया। अमीर सुन्नत लिखते हैं, कुर्बान में शान व अजमत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुद्दा सुनाते हैं। जिब्रील अमी बुराक लिए जन्नत से जमीन पर आ पहुंचे, बारात फरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते हैं। यानी अल्लाह पाक ने रात के एक मुख्तसर से हिस्से में अपने महबूब को अपने पास बुलाया, फिर फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे को वही की जो अपने बंदे को वही की। अब इस मकाम खास में, इस मकाम कुर्ब में
महबूब और मुहिब के दरमियान क्या बातें हुई, इसके बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सिर्रुल हबीबी मअल हबीबी वला यारिफु सिर्रुल हबीबी इल्लल हबीब, यानी महबूब और मुहिब के दरमियान ये राज की बातें थी और मुहिब के राज सिर्फ और सिर्फ महबूब ही जान सकता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इनमें से चंद बातों की वजाहत की कि जो बातें अल्लाह पाक से कुर्ब खास में हुई। आका फरमाते हैं, शब मेराज में अल्लाह ताला ने मुझे 3 तरह के उलूम अता फरमाए। नंबर 1, उनमें से बाज उलूम ऐसे थे कि जिनका मुझसे वादा लिया गया कि मैं इनको छुपा कर रखूं, किसी को भी ना बताऊं। वो इल्म, वो उलूम अल्लाह की ज़ात जानती है या अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा जानते हैं। नंबर 2, फरमाया बाज़ उलूम वो हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया कि जिसको चाहूँ बताऊँ, जिसको चाहूँ ना बताऊँ। और नंबर 3, फरमाया बाज़ उलूम वो हैं कि जिनकी तबलीग करने का मुझे हुक्म दिया गया कि ये इल्म की बातें हर खासो आम तक पहुँचाऊँ। और इन्हीं बातों में से वो चंद बातें हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इरशाद फरमाई। वो राज और न्याज की बातें जो लामकाम पर जाकर अल्लाह पाक ने अपने महबूब से की, उनमें से चंद बातें आपकी समातों की नज़र करता हूँ। मेरा शरीफ की रवायात में है, जब सरकार आली वकार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए प्यारे हबीब, अना व अंता, एक मैं हूँ और एक आप हैं, वमा सिवा का खलक तुली अजली का, आपके अलावा कायनात में मैंने जिसको भी पैदा किया है सिर्फ आपके लिए पैदा किया। कैसी अजीम शान। फरमाया अल्लाह पाक ने, अना वंता, महबूब एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, वमा सिवा का खलक तुली अजली का, और मैंने अपनी और तेरी जात के अलावा दुनिया में जो भी पैदा किया है सिर्फ तेरे लिए ही पैदा किया। यानी अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना ना होता, गोया कि अल्लाह फरमा रहा है, महबूब मैं दुनिया को भी पैदा ना फरमाता। दुनिया बनाई, दुनिया की नेमतें बनाई, दुनिया में रोशनी फैलाई, दुनिया को जगमगाया, आसमानों को बनाया, जमीनों को बनाया, आसमानों को चांद सितारों से सजाया, जमीनों को तरह तरह की नेमतों से सजाया, अंबिया को भेजा, लोगों को भेजा, उम्मतों को भेजा, आदम से लेकर ईसा तक जितने लोगों को भी भेजा और क़यामत तक जिनको भेजता रहूंगा, महबूब सिर्फ तेरी जात की खातिर भेजता रहूंगा। ये अल्लाह पाक ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई। और इसी की तरफ सैयदी आला हजरत इशारा करते हुए लिखते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ज़मीन व ज़मा बनाए, ज़मीनें बनाई, ज़माने बनाए, औकात बनाए, महीने बनाए, दिन बनाए, साल बनाए, ये भी आपके लिए बनाए हैं, ज़मीनें भी आपके लिए बनाई हैं। दहन में ज़बां, ये जो मुंह के अंदर अल्लाह पाक ने ज़बान और बोलने की कुव्वत दी है, दहन में ज़बां ये भी आपके लिए बनाई है। और ये जो जिस्म को जान अता की है, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और ये जो जिंदगी अल्लाह पाक ने दुनिया में अता की है, हम आए यहाँ, हम पहले आलम अरवा में थे, अल्लाह ने आलम अरवा से आलम दुनिया में भेजा। आला हजरत लिखते हैं, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, फिर मरने के बाद मैदान महशर में जमा होंगे, फरमाया उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो अल्लाह पाक ने सब कुछ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जाहिर करने के लिए बनाया। ये अल्लाह पाक की अपने महबूब से कमाल की मोहब्बत है। अब हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना अल्लाह की बारगाह से, जब अल्लाह ने फरमाया अना वानता वमा सिवा का खलक़तु लिअजली का, ए महबूबा एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, और इसके सिवा जो कुछ भी है तेरे लिए है। महबूब ये सुनकर अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा अंता वमा अना, ए अल्लाह पाक एक तू ही तू है, मैं नहीं हूं, वमा सिवा जालिका तरक्तु लिअजली का, और तेरी जात के अलावा जो कुछ भी है मैं मोहम्मद ने तेरी जात के लिए छोड़ दिया। यानी महबूब और मुहिब की कैसी मोहब्बत बड़ी बात है। अल्लाह फरमाता है, महबूबा सब कुछ तेरे लिए है,
महबूब ने फरमाया, महबूब ने अर्ज की, मौला मैंने सब कुछ तेरी ज़ात के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम गौर करें, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अर्ज की? महबूब ज़िशान ने अर्ज किया, सब कुछ मैंने अपनी रजा, अपने रब की रजा के लिए छोड़ दिया है। और एक हम हैं कि हम चंद सिक्के नहीं छोड़ते, नमाज के वक्त 10 मिनट के लिए दुकान बंद नहीं कर पाते, नौकरी को बहाना बनाकर नमाजें कज़ा कर दी जाती हैं, अल्लाह पाक की रजा के लिए नींद को कुर्बान नहीं करते, खास तौर पर फजर की नमाज में अल्लाह पाक की रजा के लिए वक्त नहीं दिया जाता, नेक कामों के लिए, नेकी की दावत देने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अल्लाह पाक ने सूदखोरों के साथ ऐलान जंग फरमाया है। कितने ही लालची हैं जो लालच में आकर सूदी लेन देन करते हैं, अल्लाह पाक की नाफरमानी के डर से अपने मोबाइल को और अपनी दीगर मामलात को नाफरमानियों से पाक नहीं करते, सोशल मीडिया का तन्हाई में भी गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं रहते। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमा रहे, अल्लाह ऐ रब मैंने तेरी ज़ात के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, काश हम भी अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करने के लिए नेक अमाल की तरफ राग़िब हो जाएं। और ये बातें हो कब रही हैं? ये बातें उस वक़्त हो रही हैं कि जब महबूब अपने रब से मुलाकात फरमा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी प्यारी बात याद आई मुझे, किसी ने कहा पता है मोहब्बत क्या किसे कहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? कहा इतनी पाक मुलाकात में भी महबूब का अपनी उम्मत को याद है। अल्लाह पाक से बातें हो रही हैं, अल्लाह पाक से कलाम हो रहा है, अल्लाह पाक ने महबूब से पूछा, महबूब कोई तमन्ना कोई आरजू? महबूब करीम ने अर्ज की, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हक में कबूल फरमा रहे। और अल्लाह पाक ने फिर नवाजा भी। तो जो महबूब उस वक़्त याद करना ना छोड़े, उम्मती का भी हक बनता है कि उम्मती भी अपने महबूब को याद रखे। अब क्या हुआ? अल्लाह पाक ने फरमाया, ये वाक़या थोड़ा तफसील से पेश करूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, राज़ो नियाज की बातों के दरमियान अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब जो चाहे मांग ले, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। जो चाहे मांग ले, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। अब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगना तो था, लेकिन ज़रा मोहब्बत भरे अंदाज से अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की। क्या अर्ज की? आपने अर्ज की, मौला फरिश्तों ने सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को करवा दिया, मैं अब क्या मांगू? मोहब्बत का अंदाज चेक करें कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी मोहब्बत अता फरमाई और महबूब ने रब से कैसी मोहब्बत दिखाई। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा मिलेगा। महबूब ने अर्ज की, मौला सजदा तो फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को करवा दिया, मैं अब क्या मांगू? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए महबूबा आदम को सजदा इसलिए करवाया था कि तेरा नूर आदम की पेशानी में चमक रहा था। आदम को सजदा हुआ था, लेकिन तेरा नूर आदम की पेशानी में चमक रहा था, इसीलिए उनको सजदा करवाया था। फिर अर्ज किया, इलाही इलाही मैं अब क्या मांगू? बुलंद मुकाम पर तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को फाइज फरमाया गया। इरशाद हुआ, महबूब इन्हें भी आसमानों पर इसीलिए बुलाया था ताकि मेराज की शब वो आपका इस्तकबाल करें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर जलवा फरमाया, फरमाया महबूब इनको मेराज आसमानों पर बुलाने का मकसद यही था कि जब आप मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ लाएं तो हजरत इदरीस आपका इस्तकबाल करें। फिर अर्ज की, मौला हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तो नजीउल्लाह बनाया जा चुका है, मैं और क्या मांगू? फरमाया, महबूब उन्होंने आपके वसीले से दुआ मांगी थी, हमने उसकी कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहरा कर नजीउल्लाह बना दिया। महबूब जो उनको नजीउल्लाह बनाया है वो भी आपके वसीले की बरकत से ही बनाया है। फिर अर्ज किया, मौला खलील तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना दिया। इरशाद हुआ, प्यारे महबूब आपका नूर उनकी पेशानी में रोशन था, इसलिए मैंने उनको मकाम खिल्लत अता किया। अर्ज किया, मालिक तूने कलीम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को तूने कलाम का शर्फ अता किया, कलीमुल्लाह तो वो बन गए, कोहे तूर पर बुलाकर बातें तो उनसे की हैं, मैं क्या मांगू? अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब उनको तूर पर बुलाकर सिर्फ कलाम फरमाया था, आपको मेराज पर बुलाकर कलाम ही ना फरमाया बल्कि आपको अपना जलवा भी अता किया है। सिर्फ कलाम ना किया, जलवा भी अता किया है। अर्ज किया, मौला बेमिसाल बादशाहत तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई, फरमाया महबूब आपको हमने मकाम महमूद अता फरमाया है।
وہ मकाम महमूद कि जब क़यामत में मुस्तफ़ा जलवा फरमा होंगे, अव्वलीन और आखरीन जमा होंगे, अल्लाह पाक महबूब से फरमाएगा महबूब मेरी हम्द करो। महबूब ऐसी हम्द करेंगे कि कायनात में किसी ने भी रब की हम्द वैसी कभी सुनी ना होगी। अल्लाह पाक महबूब को वो झंडा अता करेगा, और जो जो इस झंडे के नीचे जमा होगा, महबूब के सदके अल्लाह उन सबको जन्नत अता फरमाएगा। तो फरमाया महबूब उनको ये मकाम दिया है, लेकिन आपको मकाम महमूद अता किया है। गोया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजहार था, ए मालिक करीम, सबसे ऊंचा रुतबा, सबसे ज्यादा शाने, सबसे ज्यादा अजमतें मुझे ही अता की गई हैं। अब मांगने को बाकी क्या रह गया है? मैं किस लिए और कुछ मांगूं? हाँ, एक चीज मांगनी है, वो क्या है? रिवायत में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब्बी फकबिल शफाअती बी उसाती उम्मती। अर्ज किया, या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा मेरे नूर की बदौलत करवाया, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मेरे वसीले से कबूल की, इब्राहिम को खलील मेरे नूर की बरकत से बनाया, मूसा से कलाम मेरे वसीले से किया, मुझे मकाम महमूद अता फरमाया। इतना कुछ अता फरमाने के बाद ए मालिक करीम, अब मैं एक अर्ज तेरी बारगाह में करता हूँ कि मेरे गुनाहगार उम्मतियों के हक में मेरी शफाअत को कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब मुझे अपनी इज्जत की कसम है, आपके उम्मती गुनाह करेंगे, मैं उनके गुनाहों पर पर्दा डाल दूंगा। आपके उम्मती गुनाह करेंगे, मैं गुनाहों पर पर्दा डाल दूंगा। आपके उम्मती मुझसे मांगेंगे बख्शिश, मैं बख्श दूंगा। मुझसे दुआ मांगेंगे, मैं उनकी दुआ को कबूल करूंगा। और क़यामत के दिन आपकी उम्मत का मामला आपके हवाले कर दूंगा। जिसको तू फरमाता जाएगा, मैं रब उसको जन्नत अता फरमाता चला जाऊंगा। ये बात हुक्म नहीं है मेराज के ऊपर, जहां पर सिर्फ मुस्तफ़ा की ज़ात है और रब की ज़ात है। अब यहाँ पर जो शुरू में ने जुमला बोला कि इस पाक मुलाकात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हजूर हाजिर थे, हजूर ने अपनी उम्मत को ना बोला। उम्मती का भी हक ये बनता है कि उम्मती अपने मुस्तफ़ा को याद रखे, हर लम्हा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करे। याद कैसे करना है? चंद एक तरीके आपके सामने अर्ज करता हूँ। कपड़े पहनने लगे, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, तो ये याद आए उम्मती को कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर काबिल अज़मत काम सीधी तरफ से शुरू किया जाए। कपड़े पहनने लगे तो याद आए कि मुस्तफ़ा सीधी तरफ से शुरू करते थे, हम सीधा बाजू पहले डालने, सुन्नत पर अमल कीजिए। कपड़े उतारने लगे, हुजूर ने फरमाया जब ये मामला उतारा जाए, जूते पहने और उतारे जाएं। फरमाया जब कपड़े उतारने लगे तो मुस्तफ़ा की आदत मुबारक ये थी कि उल्टा बाजू पहले निकालते, हम उतारने लगे, मुस्तफ़ा की याद आ जाए, उल्टा बाजू सुन्नत पर अमल करने के लिए उतारे। जूता पहनने लगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आदत की कि जूता पहनते वक्त सीधा पाँव पहले जूते में डालते और उतारते वक्त उल्टा पाँव जूते से पहले निकालते। जब हम जूता पहनने लगे तो ये मुस्तफ़ा की याद आए और हम यहाँ मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करें। फिर जब जूता उतारने लगे, मुस्तफ़ा की याद आए कि हम उल्टा पाँव पहले निकालते थे, हम उल्टा निकालें। मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आने की सुन्नत ये कि सीधा पाँव पहले दाखिल करे। थोड़ी सी बंदा कोशिश करे मस्जिद में दाखिल होते वक्त मुस्तफ़ा की याद आ जाए कि मेरे आका दायां पाँव पहले मस्जिद में रखते थे, मैं भी उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए सीधा पाँव पहले मस्जिद में रखूंगा। फिर जब मस्जिद से निकलते थे, उल्टा पाँव पहले निकालते थे, बायां पाँव पहले निकालते थे। मस्जिद से निकलते वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नत याद आ जाए कि मेरे आका मस्जिद से निकलते वक्त बायां पाँव पहले निकालते थे, मैं भी सुन्नत पर अमल करते हुए ऐसा ही करूंगा। जब घर में दाखिल हो तो याद आना चाहिए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते वक्त पहले सीधा कदम अंदर रखते थे। जब खाना खाने लगे तो याद आना चाहिए कि सीधा घुटना उठाकर दूसरे घुटने को बिछाकर मुस्तफ़ा खाना खाया करते, बिस्मिल्लाह पढ़कर तनावुल फरमाया करते। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे? जब हम चलने लगे याद आ जाए, मुस्तफ़ा की आदत को अपनाते हुए उस तरह चलना शुरू कर दे। बैठने की जरूरत पड़ जाए, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठते थे याद आ जाए, बैठने लगे तो उस तरह बैठने की कोशिश करें। यूं जब हम अपनी जिंदगी के मामलात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन बातों को याद करके अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी दिल में बढ़ती रहेगी और अमल पर सवाब भी मिलता रहेगा। और हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने फसाद उम्मत के वक्त मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, यानी उम्मत के अंदर मामला खराब हो,
लोग सुन्नत पर अमल करने वाले को अजीब तिरछी नजरों से देखते हों। अगर कोई दाढ़ी रख ले नौजवान, घर वाले और दोस्त अहबाब और रिश्तेदार उसको जीने ना दे कि जी अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी से तूने दाढ़ी रख ली, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने लग जाए तो घर वाले ही तंग करना शुरू कर दे। फरमाया जो ऐसे दौर में एक सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब देखें क्या दाढ़ी रखना मुश्किल नहीं हुआ पड़ा। अगर कोई नौजवान लड़का दाढ़ी रखने में कामयाब हो ही जाए तो उसको घर से कई तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई सुन्नत पर अमल करेगा इस दौर में, फरमाए एक सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और दाढ़ी के अलावा और दीगर सुन्नतें मैंने चंद आपके सामने अर्ज की। खाना खाने से हर एक का वास्ता है, दिन में कम से कम 3 टाइम खाना कहते हैं। मस्जिद आने से तकरीबन हर एक का वास्ता है, घर जाने से हर एक का वास्ता है। इन तमाम मामलात में छोटी छोटी चीजें हैं। कोशिश करके जब हम सुन्नत के मुताबिक अमल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिंदगी भी गुजरेगी और साथ साथ सुन्नतों पर अमल का सवाब भी मिलता रहेगा। तो ये मेराज पर जब आका तशरीफ लेकर गए, अल्लाह मकाम पर तशरीफ लेकर गए, अल्लाह पाक से जो राज़ो नियाज की बातें हुई उनमें से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। पहलू बहुत सारे हैं और मेराज का सबसे हसीन तोहफा अल्लाह पाक ने जो महबूब को अता फरमाया वो ये 5 वक्त की नमाज है। पढ़ी हुई बात है, सुनी हुई बात है कि अल्लाह पाक ने 50 नमाजें फर्ज की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से 50 के बजाय 5 रह गई और अल्लाह ने फरमाया महबूबा हमारे फैसले बदलते नहीं हैं, अब भी जो 5 पाबंदी से पढ़ेगा मैं उसको 50 का ही सवाब अता फरमाऊंगा। तो आज मेराज की शब है, जागने वाली रात है, इबादत की रात है। इस रात का ये खास तोहफा है। तो आइए कोशिश करें इस तोहफे को हम अपनाएं। जो नमाजें नहीं पढ़ते वो पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ने की नीयत करें, जो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती हो जाती है वो भी कोशिश करें। आज वो मुबारक शब है कि जिस शब में अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ये खूबसूरत तोहफा अता किया कि जिसके बारे में महबूब ने फरमाया अगर किसी का दिल ये करे कि अल्लाह से बातें करे, वो नमाज पढ़ने लग जाए, नमाज पढ़ रहा है गोया कि वो अपने रब से बातें कर रहा है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।